So in today's lecture, we are going to discuss evaporation. Evaporation ये मैंने लिया है फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 से। और ये जो टॉपिक है ये सेम है फॉर बोथ फेडरल एंड पंजाब टेक्स्ट बुक बोथ। आई होप ये आपको समझ में आएगा। नाउ evaporation बेसिकली इट इज अ phenomenon जिसमें हम जनरली कहते हैं कि एक लिक्विड अगर अपने आप को वेपर्स में कन्वर्ट कर रहा होता है तो इसको हम कहेंगे evaporation. In order to understand this evaporation, we have to examine the movement of molecules in the liquid. ये लिक्विड किस तरह से मूव कर रहे हैं, एक मॉलिक्यूल या एक लिक्विड के अंदर मॉलिक्यूल्स किस तरह से मूव कर रहे हैं, ईदर दे आर वाइब्रेटिंग, वो फिक्स पोजीशन पे हैं, वो ज्यादा तेजी से मूव कर रहे हैं, क्या वो उनकी विस्कोसिटी ज्यादा है या कम है। तो ये सारी चीजें अगर हम देखेंगे तो दे आर गोइंग टू हेल्प अस इन द स्टडी ऑफ और अंडरस्टैंडिंग इवेपोरेशन। यहाँ पे क्या है कि द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड आर नॉट मोशनलेस। ऑब्वियस है कि गैस के मॉलिक्यूल रेंडमली मूव कर रहे होते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि जैसे कैंटीन पे बच्चे कभी यहाँ लग जा रहे होते हैं, कभी वहाँ वाइब्रेट कर रहे होते हैं, they are colliding with each other. So in the same perspective, liquid molecules are not motionless, although they are a bit irregular in comparison to that of the gases, but they are not that regular in comparison to the regularity which is being faced by the solid. अब क्या है कि molecules of liquid are not motionless. The molecules are not equally distributed. Some particles carry lesser amount of energy on them. Some particles are having excessive amount of energy. तो क्या होता है कि कहीं पे थोड़ी एनर्जी होती है थोड़ी देर के लिए, फिर वहां पे वाइब्रेशन बढ़ जाती है तो एनर्जी भी इंक्रीज हो जाती है। Some molecules which have low kinetic energy, obviously they are going to move slowly. The others which are having higher kinetic energy, they will move faster, even though वो immediately या fastly move करेंगे. If one of the high speed molecules reaches the surface, let's say after being making lots of vibrations and collisions and all that, surface पे वो वाला molecule reach कर जाता है या पहुंच जाता है which is having higher energy और it is of the faster speed. अब वो molecule की energy इतनी faster होती है या speed इतनी ज्यादा होती है that it can overcome the attraction faced by the neighbors. Basically, there is a phenomena when every neighbor is going to attract its neighbor. Now, if a molecule got able enough to overcome that attractive force, the molecule is said to possess that it is now able to evaporate the surface. अब वो अपनी surface से evaporate हो सकता है. Now, it may evaporate, it may overcome the attraction of the neighboring molecule, and it leaves the bulk of the surface of the liquid. Now, this spontaneous change of the liquid into the vapors is called as evaporation, and it continues in all the temperature. Basically हर liquid जो है वो certain temperature पे evaporation show करता है और हर मॉलिक्यूल एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे डिफरेंट बिहेवियर शो करता है कि उसको वेपोरेट होना है, किस रेट से वेपोरेट होना है। तो बेसिक आइडिया अभी तक हमने ये पढ़ा है। एक तो ये कि जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर मोशनलेस, दे आर नॉट द एनर्जी इनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, दे आर द फास्टली मूविंग like compounds, you can say fastly moving atoms, you can say that they can overcome the energy distributed by the uh, like they can overcome the attractive forces have by the neighbors. So that's it. Now अगर उसको overcome कर ले तो हम कहेंगे कि now the liquid is changing itself from being liquidy to vapor and it can continue for all the temperatures. तो ये हर लिक्विड का एक अपना स्पेसिफिक evaporation या evaporative टेम्परेचर होता है, ओवरकम कर लेगा तो वो इजीली evaporate हो जाएगा। अब क्या है कि क्वेश्चन यह बन सकता है कि why evaporation cause cooling. सिंपलेस्ट आइडिया है कि आप जब शॉर लेके आओगे यू आर गोइंग टू फील सम कूलिंग कूल फीलिंग, आपको मजा आता है फैन के नीचे बैठ के। अब रीजन ये होती है कि हायर एनर्जी मॉलिक्यूल विल लीव द लिक्विड। अब वो लिक्विड को हायर एनर्जी मॉलिक्यूल लिक्विड को लीव कर लेफ्ट कर देंगे। अब जब वो लेफ्टिंग का फिनोमिनन होगा तो बॉन्ड टूटेगा, जब बॉन्ड की ब्रेक डाउन होगी तब आपको थोड़ी सी वो जो एनर्जी है वो पॉजिटिव वे में यूज होगी। पंखा चल रहा हो तो आपको थोड़ा सा ठंड फील होगी। एंड लो एनर्जी मॉलिक्यूल्स आर लेफ्ट बिहाइंड, हायर वाले वेपोरेट हो जाएंगे, लीस्ट एनर्जी वाले मॉलिक्यूल में रिजाइड करेंगे या वो जो लिक्विड उसी के अंदर रिजाइड करेंगे। द लिक्विड the temperature of the liquid decreases and heat moves from the surface to of the liquid to the surrounding. तो सिंपली ये फिनोमेना हमने पढ़ा कि जो एक्सेसिव एनर्जी वाले थे वो इवेपोरेट हो जाएंगे, जो लीस्ट एनर्जी वाले थे वो लिक्विड के अंदर रिजाइड करेंगे, and then they are going to reside in the temperature of the surrounding falls up.
नेक्स्ट टेम्परेचर क्या है कि देयर आर मेनी फैक्टर्स व्हिच कंट्रोल the rate of evaporation of the liquid. Certain liquids are there, certain material is there who are going to make an impact on the rate of the evaporation. Hence, evaporation controls or evaporation occurs. The first point इसमें क्या है कि it occurs from the surface. ये surface area के through हो रही होती है. Its surface area अगर आप बढ़ाते हो तो more molecules got able to evaporate. Just like जब आपका कॉलेज का गेट जो है वो काफी वेस्ट होगा तो huge number of people can cross that gate. Meanwhile अगर आप वहाँ पे छोटा गेट लगा देते हो तो least people are able to cross that gate. So rate of evaporation is directly proportional to the surface area. Now, when the temperature is increased, the like more number of molecules are going to cross it. So यहाँ पे मैंने एक जनरल सा एक short notes भी बनाया है. Surface area increase, more molecules will be evaporating. Temperature is higher, evaporation will also go higher. So till now, they're all directly proportional to each other. In the following paragraph, we will see that when the temperature is increasing, evaporation also increases. Intermolecular forces, intermolecular forces वो वाली forces होती हैं जो molecules के आपस में interaction की वजह से present होती हैं. It's like water का एक molecule अगर water की दूसरे molecule से interaction करेगा तो उसको हम कहेंगे ये हैं intermolecular forces. अब ये जो forces हैं ये weak हो जाती हैं, rate of evaporation आपका है वो faster हो जाता है. अगर intermolecular forces strong होंगी तो रेट ऑफ वेपरेशन इनवर्स प्रोपोर्शनल के रूल के अकॉर्डिंग इसके इनवर्स होगा वो स्लो होगा. So that's it for this point. Example इसमें गैसोलीन की है. When the whose molecule experience weaker London forces of attraction, evaporation would be faster than that of the water. So that's it. Next one is going to be vapor pressure. What vapor pressure is? Vapor pressure is something. It is the vapor pressure of a liquid. It is a pressure. It is basically a pressure which is exerted by the vapors of the liquid in equilibrium when the liquid at given temperature. So basically यहाँ पे क्या है कि अगर आपके लिक्विड के ऊपर एक स्पेसिफिक प्रेशर लगा हो जिसकी बेसिस पे या तो वो इवेपोरेट कर जाए या वो रिलैक्स कर जाए, इस कंडीशन को हम कहते हैं वेपर प्रेशर. सो द लिक्विड वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इज अ प्रेशर exerted by the vapors of the liquid. अगर आपके लिक्विड में इवेपोरेशन इक्विलिब्रियम एक्सर्ट कर जाए, नेक्स्ट से यहाँ पे आधे मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो गए, आधे यहीं पे रिजाइड किए हुए. अब ये क्या है कि ये दोनों इक्विलिब्रियम में आने के बाद जब एक दूसरे पे प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, this is what we call as vapor pressure. Now the point would be यहाँ पे ये वाला फिनोमेना लिखा है कि इफ सरफेस ऑफ अ कंटेनर इज केप्ट ओपन, अगर आपने उसको एक ओपन बकेट में रख लिया है तो क्या फिनोमेनन होगा? इवेपोरेशन विल बी फास्टर. इफ यू प्लेस इट इनसाइड द क्लोज्ड लिड, मॉलिक्यूल विल accumulate right above the liquid. ओपन है, इवेपोरेट होकर सराउंडिंग में चला जाएगा. लिड को मैंने क्लोज कर दिया तो नाउ दे डू नॉट हैव एनी area to show this evaporation possible. Now it is going to stay inside this container. So as soon as the temperature is increasing, liquids or vapors are going to stay right there. So collision is increased, condensation occurs. जैसे जैसे ये collision increase होती जाएगी, molecules एक दूसरे के साथ strongly collide करेंगे. जब ये collision बढ़ती जाएगी, तब क्या होगा कि यहाँ पे condensation का process take place करेगा. Condensation का process क्या होता है? Condensation is a process when basically what happens that the molecules will be recaptured by the surface of the liquid. पहले हमने पढ़ा वेपर प्रेशर का बनना जब लिक्विड कन्वर्ट हो रहा था गैसेस में, इट वाज कॉल्ड एज वेपर प्रेशर या इवेपोरेशन कह सकते हो आप. इसी तरह से इवेपोरेशन कन्वर्ट होता है कि आपने टेम्परेचर को डिक्रीज कर दिया. जब टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा तब आपने क्या किया कि वो जो वेपर्स थे आप उनको गेन कर लो, उसको गैसेस को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, इसको हम कहेंगे कॉन्डेंसेशन. अच्छा, यहाँ पे अब एक मजेदार फिनोमेना ये होता है कि देयर इज अ टू प्रोसेस थ्योरी. evaporation and condensation will continue till the stage reaches when the rate of evaporation के जब लिक्विड को गैस में कन्वर्ट होने वाला रेट और गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने वाला रेट बराबर हो जाए, इक्वल हो जाएगा.
इसको आप कहते हो डायनेमिक इक्विलिब्रियम, कि कोई भी नेट चेंज नहीं आ रही है, चेंजेस हो रही हैं जनरली, कि आपकी लिक्विड गैसेस और गैसेस लिक्विड में कन्वर्ट हो रही हैं, बट नथिंग इज गेन्ड। नेक्स्ट थिंग इज, इसमें सिंपली वही शॉर्ट नोट्स है हमारे पास। The number of molecules leaving the surface is just equal to the number of molecules coming back. जितने evaporate हो गए सेम वे में वापस आ गए। अब यहाँ पे एक मजेदार पॉइंट है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेपर प्रेशर इज इंडिपेंडेंट। ये इंडिपेंडेंट है दो बातों पे। एक तो क्या है कि ये लिक्विड पे डिपेंड नहीं करता है, ये लिक्विड की बेसिकली क्या है कि लिक्विड की जो अमाउंट है, उसकी जो क्वांटिटी, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ दैट। इट इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट टू द सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड। बेसिकली आप उसको सरफेस एरिया दोगे तो मेजरली ये इम्पैक्ट होगा कि उनको रेट ऑफ कोलिजन, उसका कंडेंसेशन इंक्रीज हो सकता है, लेकिन मेजरली उसके इंडिपेंडेंट होता है। इट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड। हाउएवर, द लार्जर द सरफेस एरिया is, it will help a larger target of returning molecules and the rate of condensation will increase. Okay, I think I just intermixed these two things. So I'm just going to repeat it. It is independent of amount of liquid, liquid की amount जितनी भी evaporation का rate constant रहता है। However, अगर आप surface area increase कर दोगे तो वो सारा थोड़ा speedily evaporate हो जाएगा। surface area decrease करोगे तो comparatively थोड़ा less rate पे evaporation होगा, but it will be taking place. Next thing would be vapor pressure increases with the temperature. जैसे जैसे आपने vapor pressure को increase किया, वो टेम्परेचर के साथ वेपर प्रेशर इंक्रीज होता चला गया। द वैल्यूज ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द लिक्विड, कि आपने लिक्विड कौन सा यूज किया है, उसका साइज क्या है, इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है या वीक है। बट बिसाइड ऑफ दैट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर इज दैट यू कैन कंट्रोल द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड विद इट्स टेम्परेचर। बेसिक इम्पैक्ट इसका बच्चों ये होता है कि टेम्परेचर जो है वो किस पॉइंट पे जाके लिक्विड पे कितना इम्पेक्ट कर रहा है, पॉजिटिव कर रहा है या नेगेटिव कर रहा है। हम जब वाटर को बॉईल करते हैं तो इनिशियली कोई चेंज नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता, लेकिन सडनली वहां पे बबल्स बनने लग जाते हैं। जब बबल्स बनते हैं लिक्विड में, वी कैन से दैट इट इज द एक्चुअल पॉइंट व्हेन लिक्विड जस्ट स्टार्ट बॉइल्स अप। लेकिन जब वो 100 डिग्री पे पहुंचेगा तभी सारा का सारा लिक्विड बॉयल होगा। उससे पहले वो आपको फिजिकली थोड़ी थोड़ी आप चेंजेस उसमें देख सकते हो कि माइन्यूट बबल्स बन रहे हैं एंड ऑल दैट, बट द वाटर विल ओनली बॉयल इफ यू प्रोवाइड इट विद 100 डिग्री। यहाँ पे एक और पॉइंट बता देती हूँ कि जब भी कोई लिक्विड इम्प्योर होता है, उसकी क्या नेचर होती है कि वो अपने रिक्वायर्ड या फिक्स बॉइलिंग पॉइंट से या तो एक्सेसिव बॉइलिंग पॉइंट मांगेगा। जैसे अगर वाटर इम्प्योर है तो उसने बॉयल होना था 100 डिग्री से, समहाउ उसको ऐसी टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है कि अब वो इम्प्योरिटीज उसके अंदर पड़ी हुई है, तो वो कभी भी 100 डिग्री पे बॉयल नहीं करेगा। माइट भी वो 102 टेम्परेचर ले ले, माइट भी वो 110 रिक्वायर कर ले, बट 100 पे बॉयल नहीं करेगा। तो जब भी वो वैल्यू एलिवेट करे अपने नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट से, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये इम्प्योर है। इसी तरह से जब मेल्टिंग पॉइंट उसका डिक्रीज होगा तो आप ये कह सकते हो कि वहां पे क्या प्रॉब्लम है, कि वो इम्प्योर है, इसीलिए उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो गया है। जैसे लिक्विड ने मेल्ट होना था 0 डिग्री से, तो वो माइनस में चला जाएगा। इसका तो एक जनरल सी इंफॉर्मेशन थी। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आ जाता है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लिक्विड एनहांस। अब काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ जाती है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे को बीट अप करते हैं, कोलाइड करते हैं, इसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, लिक्विड अपनी सरफेस को इमीडिएटली लीव करते हैं, और इसकी वजह से इट इंक्रीजेस द वेपर प्रेशर। नाउ इट इंक्रीज इन वेपर प्रेशर गो ऑन इंक्रीजिंग सेम डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर। अब क्या है कि ये देखो 0 डिग्री से 100 डिग्री तक अगर हम देखें तो ये सर्टेन रेंजेस आ रही हैं। 10 पे देखें तो 9.2 टॉर जो है वो वेपरेट हुआ है उसका, लेकिन जब हम पहुंचते हैं 100 पे तो 760 टॉर तक इवेपोरेशन या जो वेपर प्रेशर है बेसिकली वो पहुंच जाता है। अच्छा, अभी इसका एक ओवरव्यू है टॉपिक का। वेपर प्रेशर हमारा डिपेंड करता है नेचर ऑफ लिक्विड पे, साइज ऑफ मॉलिक्यूल पे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे। वेपर प्रेशर हमारा इंक्रीज करता है जब हम डिफरेंट टेम्परेचर्स पे एक ही टेम्परेचर अगर प्रोवाइड करें डिफरेंट डिग्रीज पे, तो उसका उसके अकॉर्डिंगली इम्पैक्ट होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर हमारी स्ट्रॉन्गर होंगी तो वेपर प्रेशर हमारा लोअर होगा। क्यों लोअर होगा?
क्योंकि वो इवेपोरेट नहीं होने देगा लिक्विड को, उसको कैप्चर करके रखेगा। तो यहाँ तक हमने अपने दो टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए। नाउ नाउ वी गोना मूव टू द थर्ड वन, इट विल बी मोनोमेट्रिक मेथड। मोनोमेट्रिक मेथड में होता है कि आपने कंपैरेटिव बिहेवियर में लिक्विड को बॉईल करना है, उसका बॉइलिंग टेम्परेचर आप चेक करते हो। ये काफी एक्यूरेट मेथड है। व्हाट इज रीजन बिहाइंड दिस एक्यूरेसी इज दैट यहाँ पे आप वेपर प्रेशर एयर बबल्स को रिमूव करते हो, फिर आप एक स्टैंडर्ड लेते हो मर्क्यूरी का, उसके साथ अभी कंपैरिजन करते हो कि क्या टेम्परेचर चेंजेस आ रही हैं। फर्स्ट पॉइंट इज दैट is the vapor pressure is to be determined। वेपर प्रेशर जब आप डिटरमिन करते हो एक फ्लास्क के अंदर, एक प्लेस दिस फ्लास्क इन अ थर्मोस्टेट। अच्छा, ये कंटेनर है, इस नाम में लग गया अपना थर्मोस्टेट। आई मीन लाइक दिस इज कॉल्ड एज थर्मोस्टेट। This is the flask. Within that flask, you can place that liquid who needs to be examined। जिसको आपने चेक करना है, उसको आप रख देते हो इस लिक्विड इस फ्लास्क के अंदर। यहाँ पे हम इसको ये, आप इसको सक्शन पंप भी कह सकते हो, सिंपल वेपर वैक्यूम पंप भी कह सकते हो। या इसका ये काम होता है कि यहाँ पे जो है इस लिक्विड की अबव है उसको रिमूव करना। साथ में हम यहाँ पे लगा देते हैं ये एक थर्मोमीटर। इसका रोल होता है कि ये टेम्परेचर हमें बताता है कि जी इस टेम्परेचर पे आपका लिक्विड बॉयल हो रहा है, हीट अप हो रहा है, मतलब you're gonna note it down। ये इज द सर्टेन apparatus। यहाँ पे आपका ये वेपर प्रेशर डिटरमिन करेगा। और इधर से ये जो पॉइंट है ना मरकरी की एक साइड, ये आपको बताएगी कि आपका वेपर प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है। और ये जो साइड है मोनोमीटर की, ये बताएगी कि इंटरनल प्रेशर क्या है। अच्छा, जनरल से अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर लें तो यहाँ से तो पता हमें चल रहा है कि जी इधर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, प्रेशर ज़ाहिर है लगेगा, यहाँ पे भी समहाउ इम्पैक्ट होगा। यहाँ से जो एयर आएगी वो थोड़ी बहुत तो यहाँ पे आएगी, सही ना। मतलब इस वाले पॉइंट को ये साइड ऊपर करना चाह रही है, ये थोड़ा सा नीचे करेगी। इसीलिए आप देख सकते हो कि ये इन दोनों के मिडल में आती है, तो ये ज्यादा नहीं होती है, दोनों के दरमियान में। ये जनरल सी गपशप पॉइंट है। अब यहाँ पे क्या है कि वेपर प्रेशर इज टू बी डिटरमिन is taken in a flask placed in thermostat. On the tube of the flask is connected to the manometer, and other is connected to the vacuum pump. See, this is connected to the vacuum pump, other is of the manometer is connected to the atmospheric pressure. Next thing is that liquid is frozen now। इसको आप freeze कर देते हो। freeze क्यों करते हो अभी बताती हूँ, ताकि ये जो above एरिया पे वेपर्स हैं वो इवेपोरेट हो जाए। इसमें क्या है कि आप एयर को पार्टिकल्स को रिमूव कर दोगे आराम से। द फ्रोजन लिक्विड इज देन मेल्टेड। अब पहले फ्रीज किया पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए, अब हम इसको मेल्ट करेंगे ताकि इसके अंदर अगर कोई एयर रह गई थी तो वो रिमूव हो जाए। इस प्रोसेस का बार बार फ्रीज फ्रोजन और मेल्टिंग अप का प्रोसेस आप रिपीट करते हो, ताकि जो पार्टिकल्स हैं वो ग्रेजुअली रिमूव होते चले जाएं। अगला पॉइंट है हमारा, द लिक्विड इज वार्म। ठीक है, हमने मेल्ट किया, वार्म किया, मेल्ट किया, वार्म किया। आप इसको बहुत सारी टाइम रिपीट कर सकते हो। नाउ वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इन द फ्लास्क ऑफ द कॉन्ट टू बी डिटरमिन। आपने इसको रख दिया, इसको हमने डिटरमिन करना है। मीनवाइल क्या है, डिफरेंस इन हाइट्स ऑफ द कॉलम्स इन द मर्क्यूरी, यू आर गोइंग टू हैव द टू लिम्स। अब यहाँ पे टू लिम्स हैं, हम आप इसको डिटरमिन करते हो कि क्या चेंजेस हैं। द कॉलम ऑफ द मर्क्यूरी फेसिंग द मैनोमीटर वुड बी फेसिंग the vapor pressure of the liquid। बेसिकली ये वाली जो साइड है ये डिप्रेस्ड होगी, ये लोअर रीजन पे होगी। यहाँ पे क्या है कि हम चेक करते हैं सिंपली कि एक्चुअली द प्रेशर राइट ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड और इन द फ्लास्क इक्वल होती है टू द सम ऑफ दिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड। ठीक है, तो ये क्या है कि ये वाला जो कॉलम है ये सम होता है इसकी थोड़ी सी वैल्यू और इसकी वैल्यू का। अगर हम एवरेज लें, it is going to face this thing। For the reason the column of the manometer facing the liquid is more depressed, so that is the reason हम इसको मेजर कर लेंगे कि क्यों डिप्रेस्ड है, उसकी एक एवरेज वैल्यू ले लेंगे तो हमें आइडिया हो जाता है कि एक्चुअली चेंजेस क्या आई हैं। पहला पॉइंट मैं इसकी समरी बता दूं। ओके, तो समरी इस प्रोसेस की ये थी कि हमने ले लिया एक कंटेनर, कंटेनर में हमने डाला अपना लिक्विड, लिक्विड को कर दिया फ्रीज, फ्रीज इसलिए किया ताकि इसके अंदर जो एयर लाइक कंपाउंड्स हैं, जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं, वो उसके अंदर से रिमूव हो जाएंगे। ये प्रोसेस हम रिपीट करेंगे। रिपीट करने के बाद हम यहाँ पे वैक्यूम पंप लगाएंगे ताकि जो एयर है वो साथ साथ रिमूव हो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारा फोकस है इस चीज के ऊपर। क्यों है कि जी ये वाली जो वैल्यू है मैनोमीटर की, अदर वैल्यू यहाँ पे तो आ रहा है आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, कि भाई एटमॉस्फेयर से कितनी उस पर एनर्जी लग रही है, ये कितनी पावर लग रही है, इस चीज को तो हम कहते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ।
यहाँ से ये फेस कर रहा है सोल्यूशन इज डिटरमिन्ड ही लाइक वैल्यूज को। अब हमने मेजर ये करना है कि कितनी चेंजेस आ रही हैं, इधर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ से ट्रेवल करके नीचे उतरा है कि नहीं है, और यहाँ जो दूसरी साइड है जो मैनोमीटर को फेस कर रही है, इसकी अरेंजमेंट में ये इसकी पोजीशन में क्या चेंज है। तो हम इन पूरी वैल्यूज का एवरेज ले लेंगे। जब आप एक एवरेज ले लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा अब ये जो कॉलम है यहाँ पे मर के यहाँ पे आके स्टक हो गया, मूव नहीं कर रहा, तो यहाँ पे ये होगा हमारा वेपर प्रेशर। तो इस तरह से हम वेपर प्रेशर जो है वो सर्टेन लिक्विड्स का डिटरमिन करते हैं। आई होप यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। That's it for today. For the boiling point, we will resume the lecture by tomorrow, inshallah. See you then. So make sure to place your question in the comment box. If you want to attend the regular lecture series, simply email us. Good luck. See you then.